Hello students, now we will discuss the triangles of neck part 2. In this slideshow we will do the introduction, then surface anatomy, subdivision of triangle, content of triangle and applied anatomy of triangle. So students, here you can appreciate that anterior lateral. So this is anterior side and these both sides are lateral side. ये सामने वाली anterior होती है, दोनों साइड पे lateral है. So anterior lateral साइड ऑफ अवर नेक, दोनों ही साइड की बात करेंगे, राइट और लेफ्ट. तो दीज आर शेप देखो इनकी, दीज आर क्वाड्रिलेटरल. ये क्वाड्रिलेटरल होती है. ये क्वाड्रिलेटरल जो बनती है कैसे बनती है, इसके बॉर्डर्स हैं सुपीरियरली. दिस इज द मेंटल प्रोट्यूबरेंस. सो ये वाली लाइन होती है बेस ऑफ मैंडिबल. दिस इज द एंगल ऑफ मैंडिबल. हियर मस्टॉइड प्रोसेस. तो इमेजिनरी लाइन between the mastoid process and the angle of mandible. Superior surface or superior border of this anterior lateral quadrilateral area is like this. Anteriorly it is bounded by median line. ये लाइन मीडियन में है तो इसको मीडियन लाइन बोलते हैं. Inferiorly we have the clavicle, we know upper border of clavicle. Posteriorly here we have the trapezius muscle, the anterior margin of trapezius muscle. इसके अंदर एक bounded area है, this area, this is the anterior lateral area of our neck. This area is divided by sternocleidomastoidus muscle into two parts. So sternocleidomastoidus इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, anterior टू sternocleidomastoidus एंड posterior. तो ये जो एक क्वाड्रिलेटरल सरफेस था ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल्स. अगेन डायग्राम सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए है. ये एंटीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर. ये मसल है sternocleidomastoidus मसल. सो sternocleidomastoidus मसल इस एरिया को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है. यू कैन अप्रिशिएट anterior triangles, anterior triangle of neck, it is anterior to sternocleidomastoidus, and we have the posterior triangle of neck which is posterior to sternocleidomastoidus. So here after the section you can see this thing is sternocleidomastoidus, anterior triangle, posterior triangle. In this video lecture we will discuss the posterior triangle. Okay स्टूडेंट्स, इसमें पोस्टीरियर ट्रायंगल करेंगे, इंटीरियर की अलग वीडियो है, वहां आप देख सकते हो. सो हम डिस्कस करेंगे इस ट्रायंगल के बारे में. सो द पोस्टीरियर ट्रायंगल लाइज पोस्टीरियर टू द sternocleidomastoidus मसल. sternocleidomastoidus मसल के पोस्टीरियर में, नेक में, एंटीरियर लेटरल नेक में जो ट्रायंगल होती है दैट इज नोन एज द पोस्टीरियर ट्रायंगल. इसकी सब डिविजन्स हैं. अगर आप इस डायग्राम में देखिए, दिस इज पोस्टीरियर ट्रायंगल. दिस पोस्टीरियर ट्रायंगल is subdivided by एक मसल है यहाँ पे. you can appreciate this muscle. this muscle is known as the inferior belly of omohyoid muscle. so this muscle will divide the posterior triangle into two triangles. this one is the lower and this one is the upper. upper triangle is the larger triangle which is known as occipital because यहाँ occipital bone है, उसकी relation में तो occipital. lower is smaller triangle and that is known as the supraclavicular और subclavian. clavicle के ऊपर तो स्टूडेंट supraclavicular और यहाँ पर इसके रिलेशन में यहाँ subclavian vessel है, सो इसलिए इसी का नाम subclavian है. सो anterior lateral surface of the neck, sternocleidomastoidus ने इसको दो में डिवाइड किया. anterior to sternocleidomastoidus anterior triangle, posterior to sternocleidomastoidus posterior triangle. एंटीरियर ट्रायंगल अलग वीडियो है. एंटीरियर ट्रायंगल की 4 सब डिविजन्स होती हैं, सबमेंटल, डाइगैस्ट्रिक, कैरोटिड एंड मस्कुलर ट्रायंगल्स. पोस्टीरियर ट्रायंगल की अभी हमने की. इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहॉइड मसल पोस्टीरियर ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल एंड सुप्राक्लैविकुलर और सबक्लेवियन ट्रायंगल.
नाउ बाउंड्रीज ऑफ दिस पोस्टीरियर ट्रायंगल, इस डायग्राम से आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा बाउंड्री इसकी। दिस साइड इज एंटीरियर, यू कैन अप्रिशिएट इजीली, दिस वन इज द पोस्टीरियर ट्रायंगुलर एरिया है, दिस विल बी द बेस एंड दिस इज द एपेक्स। सो इस ट्रायंगल की एंटीरियर क्या है? एंटीरियर यू नो द मसल, दिस इज स्टर्नोक्लीडोमास्टाइडस और इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। सो एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टाइडस, posteriorly it is bounded by this muscle, the anterior border of trapezius muscle. The apex, or the first of all we can do the inferior or the base. Base is found by the middle 1/3 of clavicle. You can appreciate बच्चों, students, this side is middle and this one is lateral. तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि middle 1/3 of clavicle will form the base. Apex is the area where both trapezius and sternocleidomastoidus muscle will join. In this way we can appreciate the posterior triangle. Now roof, ये अगर C7 के लेवल पे कट सेक्शन लें, हम क्रॉस सेक्शन लें C7 के लेवल पे, दिस इज अ वर्टिब्रा, तो दिस साइड इज एंटीरियर, दिस साइड इज पोस्टीरियर और आउटर साइड से स्किन, देन द प्लेटिज्मा के बाद स्टूडेंट्स ये रेड कलर में जो है हमारे पास, दिस इज द इन्वेस्टिंग लेयर। अदरवाइज इस डायग्राम को डीप लेयर ऑफ द इन्वेस्टिंग लेयर और डीप फेशियाज ऑफ द नेक में हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया, वहां से आप देख सकते हो। इस स्लाइड में आपको शो करना है हमने कि दिस इज द एरिया ऑफ अवर इंटरेस्ट, दिस इज द एरिया ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल, जो येलो कलर में शेड किया है। तो येलो कलर की रूफ कहाँ से बनेगी? यू कैन अप्रिशिएट फ्रॉम दिस डायग्राम, यही हम अभी डिस्कस करेंगे। सो रूफ इज फाउंड बाय, अगेन अगर मैं यहाँ भी शेड कर दूं, दिस इज द येलो कलर, दिस इज द ट्रायंगल, posterior triangle. The roof of this posterior triangle is found by quite obvious, सबसे पहले skin, then the investing layer of deep fascia, some part of platysma. This area will contain some vessels, वो हमें पता है, यहाँ पर कोई वेसल्स होती हैं बच्चे स्टूडेंट्स। इस एरिया में कौन सी वेसल होती है? दिस इज द एक्सटर्नल जुगुलर वेन विद पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और यहाँ पर सुपरफिशियल नर्व्स होती हैं जो हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सस से नेक की साइड जाती हैं एंड हेड की ओर होती है, नेक हेड की वेसल्स होती हैं। दीज आर सुप्रा क्लेविकुलर, ग्रेट ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस एंड लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। इसी स्लाइड में हम, इसी वीडियो में हम आगे ये डिस्कस भी करेंगे। देन सम अननेम्ड वेसल्स आर आल्सो प्रेजेंट, लिम्फ नोड्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो रूफ में क्या क्या स्ट्रक्चर हुए ये अगेन यू कैन अप्रिशिएट इन दिस डायग्राम। अगर इसको थोड़ा और बताऊं मैं आपको, सो दिस इज द ट्रायंगुलर एरिया। इस ट्रायंगुलर एरिया में हम अभी डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास वेन होती है, दैट इज द एक्सटर्नल जुगुलर वेन विद पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एंड these small nerves, you can appreciate these are the nerves. First of all the external jugular vein, otherwise jugular veins पे अलग वीडियो है जिसमें सारी jugular veins के बारे में आपको बताया है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा एक्सटर्नल जुगुलर वेन के बारे में बताएंगे, बिकॉज इट इज द कंटेंट ऑफ दिस पोस्टीरियर ट्रायंगल। आपको पोस्टीरियर ट्रायंगल में लिखनी होती है। इंटरनल जुगुलर वेन इज डीप टू प्लेटिज्मा, दैट मीन्स इट इज सुपरफिशियल। सो जो नेक पर आपको वेन फील होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टाइडस के रिलेशन में, दैट इज दिस वेन, इट इज सुपरफिशियल, दिस वेन इज सुपरफिशियल। ये बनी कैसे? दिस इज फाउंड बाई पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर 2P, PP, posterior auricular and posterior division of retromandibular, PP मिलके बनाती हैं स्टूडेंट्स एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनती है in relation to the apex of the parotid gland. Then after formation this vein will run downward in
रिलेशन टू स्टर्नोक्लेडोमास्टोइडस मसल, ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइडस मसल है, इसको क्रॉस करेगी एंड दिस वेन विल पेयर्स द, यू कैन अप्रिशिएट, ये पेपर की तरह जो चीज़ है दैट इज द इन्वेस्टिंग लेयर, क्योंकि हमने बोला है ये वेन सुपरफिशियल है तो ये इन्वेस्टिंग लेयर के ऊपर है. सो दिस विल पेयर्स द इन्वेस्टिंग लेयर एंड इट विल ड्रेन इनटू द सबक्लेवियन वेन. इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसमें और कौन कौन सी वेन ड्रेन होती हैं? पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, सुप्रा स्कैपुलर वेन एंड एंटीरियर जुगुलर वेन्स, ये इसमें ड्रेन होती हैं. सो अगेन इस डायग्राम में यू कैन अप्रिशिएट दिस मसल, दिस इज स्टर्नोक्लेडोमास्टोइडस मसल, ये पूरा मसल स्टर्नोक्लेडोमास्टोइडस है. इस मसल के ऊपर यू कैन अप्रिशिएट द वेन, क्योंकि हमने बोला दिस वेन इज सुपरफिशियल लाइक दिस इज रनिंग लाइक दिस. सो दिस वेन इज एक्सटर्नल जुगुलर वेन, रेट्रोमैंडिबुलर, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के ज्वाइन करने से ये बनती है. Here you can appreciate this one. So floor, again हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. इस ट्रायंगल की फ्लोर जो येलो कलर में बनाई है, ये दिस इज पैरावर्टिब्रल फेशिया और मसल्स which are covered by paravertebral fascia. The floor is formed by the paravertebral fascia, ये भी डीप फेशिया और सर्वाइकल फेशियाज में इसकी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वहाँ आप देख सकते हो. एंड मसल कवर्ड बाय दिस, यू कैन अप्रिशिएट दिस ट्रायंगुलर एरिया, इसमें आप देखिए सारे मसल ही मसल हैं स्टूडेंट्स नीचे. सो दे विल फॉर्म द फ्लोर, और इनको जो कवर करता है दैट इज दिस फेशिया. तो मसल्स की बात करें, कौन कौन से मसल हैं यहाँ पे हमारे पास? स्प्लिनस कैपिटस, वी हैव द स्प्लिनस मसल, स्प्लिनस कैपिटस मसल. Then we have levator scapulae muscle. So splenus capitis, next is levator scapulae. Next to levator are scalenus muscle, 3 scalenus muscle, scalenus medius, posterior and anterior, and sometime semi-spinalis. Because students neck का size थोड़ा बेरी कर सकता है, हर किसी का साइज नेक का इक्वल तो हो नहीं सकता, सो बेरी कर सकता है. तो सेमी स्पाइनैलिस भी किसी किसी की नेक का पार्ट हो सकता है, किसी किसी की फ्लोर का पार्ट हो सकता है. अदरवाइज एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो दीज 3 आर द मेन पार्ट ऑफ द फ्लोर. बिकॉज फ्लोर लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है तो इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. देन वी हैव द कंटेंट्स. अब कोई भी ट्रायंगल होगी तो उसकी कंटेंट की बात करेंगे. Here we have the 11th cranial nerve, that is the accessory spinal nerve. Accessory spinal nerve की is present in this area. मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे कैसे होती है. Then 4 cutaneous nerve जिनकी अभी हमने बात की है वो भी यहाँ पे होती हैं. Roots and trunks of brachial plexus. यहाँ पे आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी हो रहा है. Roots and trunks of brachial plexus. Subclavian vessels, these are the content of this triangle. First of all, the spinal root of accessory nerve. Spinal nerve है, that means ये cranium से आएगी बेटा. So बच्चों, ये cranium से जब extra cranial root में जब पहुंचती है तो ये sternocleidomastoidus मसल के अंदर एक पुली बनाती है, उसके अंदर अपनी उसके अंदर चली जाती है. तो ये देखो, आप यहाँ से देख पा रहे हो, ये पुली से बाहर आ रही है. जब ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइडस को इसके पोस्टीरियर बॉर्डर से, ये है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइडस, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर. सो ये नर्व पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइडस से बाहर आएगी और ये नेक की पोस्टीरियर ट्रायंगल है, बिकॉज दिस एरिया इज ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल. सो पोस्टीरियर ट्रायंगल में रन करेगी, पोस्टीरियर ट्रायंगल में रन करेगी और ये दिस मसल इज ट्रेपीजियस. इस मसल में इंसर्ट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर अबव द क्लेविकल. ये मिड ऑफ द नेक में होती है
और 5 सेंटीमीटर अबव द क्लेविकल होती है। इसकी टोपोग्राफी जरूरी है बिकॉज आगे आपको इसको मैं क्लिनिकल्स में पढ़ाऊंगा। मेन थिंग इसकी अपनी टनल होती है जो किस मसल में है, दैट इज इन स्टर्नोक्लिडोमास्टोइडस मसल। और ये डिसअपियर कहाँ हुई, खत्म कहाँ हुई, ट्रेपीजियस में 5 सेंटीमीटर अबव द क्लेविकल। बोथ आर द क्वेश्चंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टर्नोक्लिडोमास्टोइडस मसल एंड ट्रेपीजियस मसल की नर्व सप्लाई इज cranial number 11. These are two muscles 1 plus 1 and these two muscles are supplied by accessory cranial nerve, spinal root of accessory cranial nerve. नेक्स्ट है क्यूटेनियस नर्व्स। अगर आप देखो अगेन हम इसी एरिया की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में यू कैन अप्रिशिएट दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टोइडस। इस पोस्टीरियर बॉर्डर के रिलेशन में हमारे पास नर्व्स हैं, इनकी बात करने लगे स्टूडेंट्स अब हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल पेयर्स द फेशिया। दिस इज क्वेश्चन कि फेशिया को कौन पेयर्स करता है, क्यूटेनियस नर्व्स। दे विल पेयर्स द फेशिया। और एक अभी हमने बात की थी एक्सटर्नल जुगुलर वेन आल्सो पेयर्स द फेशिया। ये जब यहाँ फेशिया को पेयर्स करेंगी इन द मिडल ऑफ द नेक, देन दे विल बिकम द क्यूटेनियस नर्व्स। स्किन को सप्लाई करेंगी, सो क्यूटेनियस है। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक। नाम बता रहा है स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्सली रन करती है, सो इसका नाम ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक है। सारी ही जो यहाँ की नर्व्स हैं, जो ये वाली नर्व्स हैं क्यूटेनियस नर्व ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस, ये वाली वेंट्रल रूट से आएंगी। क्यों वेंट्रल रेमाई से आती हैं, ये आप मेरा स्पाइनल नर्व पे लेक्चर है, टिपिकल स्पाइनल नर्व, वहाँ से समझ सकते हो इजीली, एक बार जरूर देखना। सो सर्वाइकल प्लेक्सस वेंट्रल रेमस C2 C3 C4 समटाइम C5 तक होता है। यहाँ से आएंगी तो फर्स्ट से आई C2 C3 से ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व, और दिस ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व विल गिव सप्लाई और इनरवेट द स्किन, हमने बोला क्यूटेनियस ऑफ नेक एंड स्टर्नम तक। सेकंड वी हैव द सुप्रा क्लेविकुलर। नाम बता रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज क्लेविकल, तो क्लेविकल के ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व दिस अगेन, ये भी वेंट्रल रेमाई और सर्वाइकल प्लेक्सिस C3 C4 से है। वो C2 C3 थी, ये उससे डाउन है, सो C3 C4 से है। सेम पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टोइडस से मर्ज होगी। पहले तो डीप थी ये सारी की सारी, क्योंकि वर्टिब्रास अंदर है, वहां से आई थी। यहाँ पे पेयर्स करके मर्ज होगी और नेक में आएगी। नेक में आके ये 3 ब्रांचेस देती है। दिस इज द मीडियल साइड ऑफ द बॉडी आएगी, तो मीडियल स्टर्नम तक, मैनोब्रियल स्टर्नम जॉइंट तक सप्लाई करती है। मीडियल के बाद सेकंड इज इंटरमीडिएट सुप्रा क्लेविकुलर, क्योंकि क्लेविकल के ऊपर है, तो फर्स्ट पार्ट को मीडियल ने किया स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्किन ओवर दिस, दैट इज टिल सेकंड रिब, ये इंटरमीडिएट नर्व सप्लाई देगी। थर्ड इज दिस वन, इट इज लेटरल, सो मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल। लेटरल हमारी शोल्डर तक देती है, डेल्टॉइड तक स्किन को नर्व सप्लाई देती है। दैट्स वाई डेल्टॉइड की क्यूटेनियस नर्व सप्लाई की रूट वैल्यू C3 तक होती है, C3 C4। नेक्स्ट इज ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। नाम बता रहा है ऑरिकल ईयर, तो ये ईयर की ओर जाएगी। दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मैथस, ईयर की ओपनिंग है, सो ग्रेट ऑरिकल नर्व। सेम ये भी सर्वाइकल प्लेक्सस से बनी, बट दिस इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस। इट विल आल्सो पेयर्स द deep fascia and it will merge, same boy line है same, on the posterior border of the sternocleidomastoides. From here it will run upward on sternocleidomastoides, ascend कर रही है ऊपर की ओर, C2 C3 से आई है। यहाँ पर आकर ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है नेक में, एंड एंटीरियर विल गिव supply to cutaneous supply to the parotid gland and the lateral half of the skin of the pinna. It is very important, parotid की स्किन की सप्लाई को किसकी होती है, that is of
ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। पोस्टीरियर वाली बाकी पिन्ना के एरिया को देगी बेटा बच्चों, जो स्किन ऑफ द पिन्ना। सो स्किन ऑफ द पिन्ना and it is very important, skin of the pinna and the parotid gland around this pinna is supplied by great auricular nerve. So इसकी skin supply cutaneous supply great auricular nerve है। Next is the lesser occipital, नाम बता रही है occipital के साथ जाएगी toward occipital। So lesser occipital nerve सेम, ये भी ventral ramus of C2 से है और ये भी सेम एरिया में ही मर्ज करेगी जो हम बात कर रहे थे पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टोइडस से। देन इट विल वाइंड अराउंड द स्टर्नोक्लिडोमास्टोइडस, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइडस को वाइंड करेगी, असेंड अपवर्ड एंड इट विल गिव द क्यूटेनियस सप्लाई टू द स्काल्प। सो सेंट्री सप्लाई ऑफ द फेस के लिए ये डायग्राम इसलिए रखी है कि आपको दिखाना है द पिन्ना, this part, the lateral skin over the lateral surface of the ramus of mandible, that is parotid, area of parotid, is supplied by greater auricular nerve, rest is supplied by trigeminal। ठीक है, जिसका क्लिनिकल यूज है वो आप पैरोटिड में पढ़ोगे। और भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें से है हमारे पास the branches, that is the nerve to levator scapulae, जो और मसल है यहाँ पे उसके लिए levator scapulae and trapezius। देन बच्चों ब्रेकियल, स्टूडेंट्स ब्रेकियल प्लेक्सिस को याद करो आप, और ब्रेकियल प्लेक्सिस की ट्रंक को याद रखो, उसकी ही सारी ट्रंक से लेके उससे पहले वाली सारी ब्रांचेस यहाँ पे होती हैं। वी हैव द ट्रंक, दिस ट्रंक इज प्रेजेंट बिटवीन स्क्लेनस एंटीरियर एंड मीडियस, दिस इज क्वेश्चन। ट्रंक स्क्लेनस एंटीरियर और मीडियस में होती है, ये एक्सिलरी शीथ के अंदर होती है ट्रंक। देन ट्रंक की ब्रांचेस आ गई, वी हैव नर्व टू रोम्बॉइड्स, वी नो इट। देन नर्व टू स्क्लेनस एंटीरियर, ये भी ब्रेकियल प्लेक्सिस से है। नर्व टू सबक्लेवियस, ब्रेकियल प्लेक्सिस। सुप्रास्कैपुलर नर्व फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सिस, ये सारी पोस्टीरियर ट्रायंगल में है। देन वी हैव द सबक्लेवियन आर्टरी, सेम प्लेन में होती है। सबक्लेवियन आर्टरी इज आल्सो बिहाइंड द स्क्लेनस एंटीरियर, स्क्लेनस एंटीरियर के पीछे होती है, ये भी सेम एक्सिलरी शीथ में होती है। देन वी हैव द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी विच इज ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक। वी हैव सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी दैट इज आल्सो ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक। वी हैव ऑक्सीपिटल आर्टरी, वी हैव सबक्लेवियन वेन, द सबक्लेवियन वेन इज प्रेजेंट anterior to the sclenus anterior and subclavian vein is outside the axillary sheath। so इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। we have sclenus anterior, otherwise first of all let's draw again। so neck clavicle की बात करूँ, this is the clavicle, राइट साइड की clavicle की बात करूँ, और then we will draw the first rib like this। so अगर मसल की बात करें, we have sclenus anterior then sclenus medius, दो मसल्स हैं। the trunk is present between these two muscle, trunk of brachial plexus, as well as the subclavian artery is present between these two muscle, but the subclavian vein is anterior to these muscles। ये आपको बताना चाह रहा था। सो अगेन छोटा सी रिवीजन है, पोस्टीरियर ट्रायंगल को डिवाइड किया, किसने डिवाइड किया? ओमोहॉइड मसल ने पोस्टीरियर ट्रायंगल को डिवाइड किया दो ट्रायंगल्स में, inferior value of omohyoid, this is also question। upper is the occipital part, lower is the supraclavicular और subclavian part। so upper में क्या होता है, these are MCQ question। upper part में बड़ी ट्रायंगल में क्या है हमारे पास, we have the spinal trachy nerve, जो अभी बात की वही सारे स्ट्रक्चर्स होंगे। four cutaneous nerves, these are lesser occipital, greater auricular, anterior cutaneous branch, supraclavicular, and the roots, it is very important, and the roots are present in upper
ट्रंक्स आर प्रेजेंट इन दी लोअर ट्रायंगल लाइक दिस। हमें पता है पहले रूट होती है ब्रेकियल प्लेक्सस की, फिर ट्रंक होती है। सो रूट्स देन ट्रंक्स। ये दो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, नेक्स्ट तो इजी है। नर्व टू स्ट्रेटस एंटीरियर, नर्व टू सबक्लेवियस, suprascapular nerve and third part of the subclavian, these are present in the lower triangle. Now applied anatomy, posterior triangle की बात करें स्टूडेंट्स हम, so this is the area of posterior triangle। यहाँ पर मोस्ट कॉमनली यहाँ पर स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द इनलार्ज लिम्फ नोड, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, एडिनोपैथी की वजह से लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट हो जाती है। दिस इज मोस्ट कॉमन स्वेलिंग प्रेजेंट ऑन दिस। कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब भी हमें यहाँ की बायोप्सी लेनी है या हमें इसकी एक्सक्रीशन करनी है, इसे कट करना है, वी शुड टेक केयर ऑफ एक्सेसरी क्रेनियल नर्व। हमने पहले ही बात की थी कि इस एरिया में सुपरफिशियल बेन है, नर्व है एंड वेसल है। तो बेन इज क्वाइट इजी, बेन तो हमें दिखाई देती है, लेकिन वी शुड नो कि एक्सेसरी क्रेनियल नर्व इज आल्सो रनिंग लाइक दिस। तो हमें इस नर्व को सेव करना है, अदरवाइज वी नो एक्सेसरी क्रेनियल नर्व इज गिविंग नर्व सप्लाई टू स्टेर्नोक्लेइडोमास्टाइटिस एंड ट्रेपेजियस, इनका पैरालिसिस हो सकता है, टॉर्टिकोलस। देन cervical rib. Cervical rib is known as extra rib. So if the costal element of C7 से कोई रिब नहीं है, अगर इसका कोस्टल एलिमेंट मोर ग्रो कर जाता है, आगे को ज़्यादा ग्रो कर जाता है, तो दैट इज नोन एज द सर्वाइकल रिब। सर्वाइकल रिब इज बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द कोस्टल एलिमेंट ऑफ C7। इसमें क्या होगा? अगर ये एबनॉर्मल ग्रो कर जाता है तो हमने पहले ही बोला था इस एरिया में वी हैव द सबक्लेवियन आर्टरी। सो दिस रिब विल प्रेस दिस आर्टरी, जिसकी वजह से अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी अपर लिम्ब को। देन वी हैव द डायाफ्रेजिया लुसोरिया। लुसोरिया इज एक्चुअली लुसोरिया आर्टरी। व्हाट इज लुसोरिया आर्टरी? हमें पता है दिस वन इज आर्च ऑफ एओर्टा, दिस इज आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा से आती है right brachiocephalic. This brachiocephalic right side, this brachiocephalic will give branch that is right subclavian and right common carotid. This is normal. अगर ये right subclavian abnormally arc of aorta से grow करती है, that is proximal to left subclavian, लेफ्ट सबक्लेवियन के पास से ये अगर ग्रो करती है, तो ये इस रूट में स्टूडेंट्स जाएगी, क्योंकि इसे जाना तो राइट साइड है, बिकॉज ये राइट सबक्लेवियन है। सो राइट सबक्लेवियन अगर यहाँ से ग्रो करती है, आर्क ऑफ एओर्टा से डायरेक्टली ग्रो करती है, इस आर्टरी को बोलते हैं लुसेरियन आर्टरी। सो लुसेरियन आर्टरी इज एबरेंट आर्टरी, इट इज एबनॉर्मल, एम्ब्रियोलॉजिकली एबनॉर्मल ग्रोथ आर्टरी, that is right subclavian artery, which is originating from left side of the arc of aorta. So ये जब रन करेगी स्टूडेंट्स, तो it can run between the trachea and esophagus or it can also run behind the esophagus. So ये वाली जो आर्टरी है ये डिस्फेजिया कर सकती है, इसको बोलते हैं डिस्फेजिया लुसोरिया। नेक्स्ट इज द राइट external jugular vein is also used to examine venous pressure. right ही क्यों करते हैं हम? because right is little bit larger first, second right will show direct pressure of the heart, reflect करती है हार्ट में जो प्रेशर है आर्टेरियल, राइट एट्रियल के प्रेशर को ये रिफ्लेक्ट करती है, एंड इट इज वॉल्वलेस। तो हम यहाँ पर हार्ट का प्रेशर फील कर सकते हैं, वेनस प्रेशर। देन द एक्सटर्नल जुगुलर वेन, पहले ये डायग्राम थोड़ा सा कर लेते हैं। दिस इज स्किन, प्लेटिज्मा, ग्रीन कलर इज इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया, एंड दिस वन इज वेन। सो एक्सटर्नल जुगुलर वेन हमने बोला था सुपरफिशियल होती है, सुपरफिशियल तो नहीं होती लेकिन वी कैन फील इट, प्लेटिज्मा के नीचे है। जब इसे डीप, इसे ड्रेन तो सबक्लेवियन वेन में होना है, जब इसे सबक्लेवियन वेन में ड्रेन होने के लिए जाना है, हमने शुरू में बात की थी, इट विल पेयर्स द
इन्वेस्टिंग लेयर को पियर्स कर रही है, यू कैन अप्रिशिएट ओवर दिस। तो जब ये इन्वेस्टिंग लेयर को अप्रिशिएट करेगी तो आउटर लेयर ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन will merge with the investing layer. Outer layer will merge with the investing layer. नॉर्मली अगर कोई वेन ऐसे रन करती है, अगर वेन में कोई भी स्टूडेंट्स कट लग जाता है तो वेन विल कोलैप्स। क्यों? क्योंकि वेन की अपनी इंटीमा वगैरह होती है, वो कोलैप्स करेगी और ब्लीडिंग रुक जाएगी। लेकिन इस केस में क्योंकि द एक्सटर्नल जुगुलर वेन की आउटर लेयर, that is adventitious layer, is merging with the investing layer of deep fascia. So जब इस वेन पर अगर कोई कट लगेगा तो ये इन्वेस्टिंग लेयर वेन को कोलैप्स नहीं होने देगी, सो ब्लीडिंग बढ़ेगी और इसकी वजह से अंदर थोरैक्स है, थोरैक्स में नेगेटिव प्रेशर होता है, एयर सक हो सकती है जिसको बोलते हैं एयर एम्बोलाई। सो एक्सटर्नल जुगुलर वेन में अगर इंजरी होती है तो एयर एम्बुलाई हो सकता है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? इसको प्रिवेंट करते हैं हम डीप फेशिये को भी साथ में या तो कट से प्रिवेंट करते हैं या उसको हम इसके साथ टाई कर देते हैं। सो थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, you can ask me, you can comment me in comment box. Subscribe my channel.